Hello friends, how are you? So hope you all will be fine. Today is the glorious day and lockdown in India is to be continued even as. So hope you all will be doing great. So if some subscribers, some viewers haven't subscribed our YouTube channel, kindly subscribe it. So today's discussion topic is recently what happened. India has distributed malaria's vaccine across the world except Pakistan. Not only this, but also India has given tremendous support to other neighbor countries in Asia and Europe as well. Narendra Modi praised Mr. Modi for doing this humanity task, and he appreciated India's Prime Minister task action which he has done. Now the matter of concern is Jamaatis, the people of Islamic world. What they are doing actually, they are radicalizing their Islam through coronavirus. They are spreading coronavirus across many nations with their Jamaat, with their education to kill people like jihad. So dear viewers, on this point, what do you think? You will have to write in the comment box. First of all, what happened recently? China has declined to access any country is intelligent to go there and search what happened exactly there in particular place in China. Not only this, but also it is a matter of concern that why China is preventing these actions, why it is not allowing intelligence of the world to come at particular place where corona arisen. So दोस्तों, this is a view. If you are able to see 100% isolation, if you are able to see over here, so isolation is only the way by which you can save people, you can save world. Not only world, but also you will help those who are poor. Recently हमने एक अभियान चलाया जिसमें कई लोगों की हेल्प की. So you will have to start helping people, which is very important. 10 लोगों को जो है खाना दें. World is in economic crisis. Even one of my friends, I have taken his idea because he is economist. He said we are in deeply in depression in case of economy. It will take minimum 15 years to get rid of it. एक अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों. यू विल हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. एक नॉमिनल जो मुसलमान है 35 साल की उम्र में, उसके जो है एवरेज जो बच्चे हैं वो 8 होते हैं. एक हिंदू फैमिली के जो 35 साल के जो हैं अभी, मतलब जो लोग 35 साल के हैं, 35 ईयर ओल्ड, उनके बच्चों की जो है 1 या 2 बच्चे होते हैं. तो ये इस्लामिक वर्ल्ड ये मटेरियल पे फोकस नहीं कर रहा है, ये
एक जनसंख्या को बढ़ाने में जो है वो जोर दे रहा है। एज ए डेमोक्रेटिक, एक बार अगर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन गया, ही विल रूइन द कंट्री बैडली। कोई धर्म नहीं बचेगा दोस्तों। So today is lot to discuss, lot to know. If you haven't subscribed our YouTube channel, kindly subscribe it, which is very important. एक नॉमिनल एवरेज जो बच्चे हैं 18 साल के, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों के बच्चों की है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो आज की ग्रोथ रेट है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है। कहने में क्रिश्चियन जो हैं वो वर्ल्ड में एक मुसलमानों को अपनी एक खतरनाक रूप बताते हैं कि कैसे यूरोप में इस्लाम फैल गया है। सो फ्रेंड्स, beware of it. I'm not radical speaker, I'm not provoking anybody over here, but I'm telling the truth that I have observed nowadays, because now the corona cases are more than 28,000. This is badly worse ever. When it was started 2 months ago, when I heard it was 2 cases, now it's been 28,000. So see how it's it has been spread greatly across India. तमिलनाडु, कर्नाटका के अंदर एक मुसलमान लीडर है जो अपने आप को एक मुसलमान लीडर बताते हैं। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, आप सभी जानते हो। वो बोल रहे हैं कि उनके साथ जो है गलत किया जा रहा है, गलत हो रहा है उनके साथ। तो क्या असली में गलत हो रहा है? अगर 25% लोग देश के 100% आवाम को स्प्रेड कोरोना देते हैं तो क्या ये सही है दोस्तों? यू हैव टू टेल मी योर ओपिनियन। और सबसे बड़ी बात जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो गिर गए हैं। तो क्या हुआ है कि हर देश के पास बहुत बड़ा भंडार है, पर इंडिया के पास स्टोरेज के लिए भंडार ही नहीं है। कहाँ पे स्टोर करेंगे? सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगर इतना सारा ऑयल ले भी लेते हैं तो कहाँ स्टोर करेंगे? एक तरीका हो सकता है कि जिस कंट्री से खरीदो वहीं पे जो है इसका स्टोर बना देना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। सो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ऑयल को खरीदो और अब किसी पर्टिकुलर, चाहे उसका जो है आपको पर्टिकुलर लीज पे भी लेना पड़े, उसको ले लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट द ग्राउंड। इसके बाद जो ऑयल के प्राइसेस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में था कि जो ऑयल के अलावा जो शराब की फैक्ट्रियाँ हैं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ अब दोस्तों, जो शराब की फैक्ट्रियाँ हैं देश भर में, पंजाब की बात करें अगर, तो पंजाब के सीएम ने अर्ज किया है सेंटर से कि इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से तबाह हो रही है कि अगर आप ये शराब के बिजनेस को जो है आप नहीं अलाउ नहीं करते हो तो इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू द कंट्री। हर तरह का बिजनेस ठप पड़ा है दोस्तों। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अगर नॉमिनल एक कंपनी को मान के चलूं तो उसको 3 महीने लग जाएंगे ट्रैक पे आने के लिए। दोस्तों, अगर आपके उस एरिया में जहां पे आप रहते हो, अगर आप इफ यू फाइंड समबडी, इफ ही और शी हैज अ नीड ऑफ यू, टू काइंडली हेल्प हर और हिम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैज टू बी हेल्प्ड। मैंने रिसेंटली मिस्टर ओवैसी का भाषण सुना जिसमें उसको रेडिकलाइजेशन के लिए पूरे देश के अंदर क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि 144 इम्पोज्ड है, जिसके अकॉर्डिंग नोबडी इवन कैन मूव विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंटर प्रेसिडेंट। तो
जहाँ पे बात आती है 144 भी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 144 है, बट इमरजेंसी का मतलब है नो कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अपने घर के अंदर रहना है, बड़ा ही जरूरी है। अगर आप घर के अंदर नहीं रहते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरे देश को झेलने पड़ेंगे। एक कोरोना वायरस का पेशेंट 2 लोगों को संक्रमित करता है, और वो 2 लोग 200 लोगों को परेशान करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, काइंडली फॉलो द पॉलिसी, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसके अलावा घर में रहते हुए स्किल्स को पॉलिश जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, उनको घर में आमंत्रित ना करें, ना आप किसी के घर में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है बाहर जाने से रोकें, बड़ा ही ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। If there is very important to go outside, you will have to go. Otherwise, there is no use to go outside. It will definitely lead to disease corona, which is pandemic now. Recent news में मैंने देखा कि जो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है, घरों में रहने से, जो कुछ तो सोशल नेटवर्क पे लोग बिजी रहते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है जो घर में कलह की बात करेंगे, घर में क्लेश, तो वो भी रीज़न हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इमरजेंसी का टाइम है, अपने आप को संभाल के रखना है, किसी से फालतू जो है आपने झगड़ा नहीं करना है, बड़ा ज़रूरी है अपने आप को संभालना। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ ब्यूटी दिखाऊंगा, नेचर्स ब्यूटी, कैसे आप ऐसे जगह पे आइसोलेट हो सकते हैं। सो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ है। सो दिस इज़ द आइसोलेटेड प्लेस बेसिकली। तो अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है तो स्टे काम, मेडिटेशन जरूर करें। मेरे कुछ लेक्चर्स हैं यहाँ पे, ब्राइट एजुकेशन फ्री लर्निंग के नाम से प्लेलिस्ट में देखिए, मेडिटेशन पे बहुत सारे लेक्चर बनाए हुए हैं मैंने। मोटिवेशनल वीडियोस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। सो वी हैव अ मेट्स विद मी टुडे, सो वी विल आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम देम। दिस इज द सेकंड लॉकडाउन नाउ, सो व्हाट दे फील। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हो आप सर? ठीक है सर, ये सेकंड लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या महसूस कर रहे हैं अभी सेकंड लॉकडाउन में आप? बहुत बढ़िया। मतलब रिसेंटली क्या हुआ है कि पूरी तरह से कारोबार ठप है, तो जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने कई गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर से अर्ज करी है कि जिससे उनको ज़्यादा टैक्स लगता है, जिनके ज़्यादा इनकम आती है, वो जो है व्यवसाय उनको अलो कर देना चाहिए, जैसे शराब हो गया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको जो है अलो करना चाहिए? नहीं, उसमें पता क्या है, उसमें ऐसा है कि अगर शराब को हेलो करते हैं, कुछ काम और भी हैं उसके पीछे जो छुपे हैं। लोग फ्री हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो एक जो बहुत बड़ा टैक्स जो है वो स्टेट वसूलती है इस व्यवसाय से। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी? देखो, गवर्नमेंट को अभी हेल्प की जरूरत तो जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए कि अगर सेंटर गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो स्टेटों को भी चाहिए, घाटा तो पड़ेगा। जी। वो पूरे देश को पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को पड़ेगा। लेकिन अभी जो अगर शराब खोलते हैं तो जो पंजाब के तस्कर हैं वो दूसरा काम भी खोल देंगे। जी। सर, इसके साथ जैसे अभी रिसेंटली ऑयल के प्राइस गिर गए हैं, बहुत ही 0% पे जाके वो गिरे हैं, तो हमारे पास इंडिया में गोदाम ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो आपको लगता है कि किसी विदेश में वहाँ पे एक लीज पे स्टोर बना लेना चाहिए? आपको लगता है सही टाइम पे हिट करना चाहिए अभी? देखो, इसके लिए पता क्या है जी, कि देश में बड़े बड़े हमारे समझदार आदमी बैठे हैं जी, जो हमसे काफी दूर आगे हैं। इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका दिमाग जो जैसे चल रहा है, जी, शायद इसके लिए उन्होंने विचार किया है, जी, तो वो कर भी ले। नहीं, उनका विचार ठीक है सर, उनके पास स्टोर हैं, पर वो इतने छोटे स्टोर हैं कि अगर वो बड़े अकाउंट में स्टॉक ले लेते हैं तो रखने के लिए जगह नहीं है। तो अभी देश में कुछ पिछले दिनों की अगर कोरोना के तहत देखो ना, पिछले दिनों की बात करनी हो तो कुछ और है जी। अभी देश में जैसे चल रहा है ना जी, इसको, इस वक्त को संभालना जरूरी है जी। आगे आने समय के लिए। उनके लिए ये जो जरूरत, जिस चीज की जरूरत है उसके लिए गवर्नमेंट तैयार बैठी है। जी, जी। अभी तो कोरोना का जो पड़ा हुआ ना, जी, जी, उसके लिए गवर्नमेंट को पूरी तैयारी से पूरा सारा काम करना पड़ रहा है। जी, जी। थैंक यू सर। सर, ये जो रिलेटिव्स, जो आज लोग एक दूसरे को कोरोना की परवाह किए बिना लोगों के घर पे जा रहे हैं मिलने के लिए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये खतरा है बहुत बड़ा? डिस्टेंस रखा जाए,
तो कोई खतरा नहीं है। अगर डिस्टेंस अगर ना आपके रखा, रिलेटिव्स बिना बुलाए आपके घर पे आ जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? सबसे बड़ा वो खतरा है जी कि आजकल रिलेटिव को एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए जी। जब तो लॉकडाउन आप है। ये और यहाँ जब पे तक 10 कोरोना लाख खत्म व्यूअर्स, नहीं होता। जी 10 लाख व्यूअर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए कोरोना इस टाइम में? कोरोना में तो एक तो डिस्टेंस की दूरी रखनी चाहिए, जी दूसरा एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, कोई रिलेटिव एक दूसरे से के घर ना जाए। जी जी और उसके बाद जी जैसा कि महामारी है, जी ये एक दूसरे के छूने से, जी हाथ लगने से, जी टच करने से ये फैलती है। जी जी तो इसका हमें जरूरी बचाव करना जी चाहिए। जी। थैंक यू सर। हमारे 10 लाख व्यूअर्स हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो सर आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अभी? मैसेज तो हमारा ये है जी कि इस समय जो कोरोना का प्रकोप पड़ा हुआ जी है, जी जी इसमें हर इंसान, हर बुजुर्ग आदमी या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को यही समझाए कि जो जी पड़ा हुआ है इसको निकालो। जी जी मई महीने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, जी जी उसके बाद आना जाना शादियों ब्याहों में जो भी है करो, जी, उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन जी। जो इस वक्त पड़ी हुई है इसके समय को निकालो। जी थैंक यू सर, थैंक यू very much. So friends, even you have seen that the people even were walking around and this their opinion we have shared. So if you like this video, kindly share, subscribe and send this to your friends so that it will be popular as soon as possible. Not only this, but also I'm expecting a positive gesture from you guys. Kindly, if you haven't checked our playlist, kindly visit our playlist, which is very good. Definitely you will enjoy it. Thank you very much. We will be discussing in the next session various things, a lot to discuss, a lot to know. So we'll meet in the next session.